ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سلطان کی منگیتر نسرین کا حال سنائیں کہ جب کالی داس اور کرپال سنگھ اسے اغوا کر کے لے گئے تو اس پر کیا بیتی۔ لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ نسرین پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے علاوہ بڑے دل گردے والی لڑکی بھی تھی۔ پابند صوم و صلات تھی، پارسا اور پاک باز تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ اصلی زندگی وہ ہے کہ انسان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرے اور عزت نفس کو زندہ رکھے۔ اگر دینی احکامات کی تعمیل نہیں تو پھر عزت نفس بھی نہیں، اگر عزت نفس نہیں تو پھر زندگی بھی نہیں۔ جب انسان کا ایسا عقیدہ ہو جاتا ہے تو پھر موت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ موت بھی اس سے خوف کھانے لگتی ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، کراچی میں وہ اپنے ماموں کے ہاں رہتی تھی، مگر اس کا زیادہ وقت سلطان کے باپ مرد مومن اکبر شاہ کے گھر پر گزرا تھا، جس نے اسے دینی تعلیم کے علاوہ دین پر عمل پیرا ہونے کی عملی تربیت بھی دی تھی اور اسے شاخ گل سے شعلہ جوالہ بنا دیا تھا۔ نسرین صنف نازک ضرور تھی، مگر اس صنف نازک کے جسم میں ایک ایسی چٹان چھپی ہوئی تھی جس پر بجلیاں بھی اڑ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بجلی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ توانائی نسرین کی روح کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے بتائے ہوئے ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کے اخلاقی جذبے عطا کی تھی۔ وہ صنف نازک ضرور تھی، وہ دو آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر ایک پہاڑ بھی چاہتا تو اسے دھکا دے کر اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ یہ دین اسلام پر عمل پیرا ہو جانے کے بعد کے ابتدائی مقامات تھے۔ ان مقامات پر آدمی کو لڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے آگے وہ مقام آتے ہیں جہاں مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے، پھر تلوار کسی اور کی چلتی ہے اور ہاتھ بندہ مومن کا ہوتا ہے۔ چنانچہ نسرین کو جب گنڈوں نے اغوا کر لیا تو اس نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بندہ سکس اسمگلر ہے اور انہوں نے ہی اس کے ہونے والے سسر کو قتل کیا ہے۔ نسرین کو اگر کوئی غم تھا تو صرف سلطان کا غم تھا، اپنے ہونے والے خاوند کا غم تھا، جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتی تھی اور جس کے ساتھ اس نے شادی کے بعد ساری زندگی بسر کرنی تھی۔ وہ جب شہر سے واپس گھر آ کر اپنے باپ کی لاش دیکھے گا اور اپنی نسرین کو غائب پائے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ نسرین نے صرف ایک ہی فیصلہ کیا تھا، فیصلہ کیا نہیں تھا، یہ فیصلہ تو اس کے اندر پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ اب تو اسے فیصلے پر عمل کرنا تھا، اب اسے مرنا تھا، کیونکہ عزت اسے بچتی نظر نہیں آ رہی تھی، زندگی اسے بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان اسمگلر گنڈوں نے اکبر شاہ کے مکان کے باہر جاتے ہی اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا، کچھ دور کھیتوں اور ویرانوں میں دور سے اپنے ساتھ ساتھ دوڑاتے ہوئے اسے لے گئے۔ ایک جگہ اندھیرے میں ان کی گھوڑیاں کھڑی تھیں، انہوں نے نسرین کے ہاتھ پیچھے باندھے اور گھوڑی پر ڈال کر رات کے اندھیروں میں اسے ایک طرف کو لے گئے۔ راتوں رات ایک خفیہ مقام پر سے انہوں نے سرحد پار کی اور انڈیا میں داخل ہو گئے۔ بارڈر سے 6-7 میل دور ایک سرحدی گاؤں میں ان کا ایک خفیہ اڈا تھا، ایک کچا مکان تھا جس کی کوٹری میں پہلے سے 3 آدمی ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں 2 سکھ اور ایک ہندو تھا۔ ایک سکھ زیادہ عمر کا تھا، اس نے لڑکی کو تو دیکھا تو کرپال سنگھ سے کہا، کرپالے، یہ شاہ کی بیٹی ہے کیا؟ کرپال سنگھ نے نسرین کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، نہیں بھیا، یہ اس کی بیٹی نہیں، اس کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں۔ تو پھر یہ کون ہے؟ ادھیڑ عمر سکھ نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے، ہم اکبر شاہ کو قتل کرنے کے بعد نکل رہے تھے کہ یہ اندر آ گئی، ہم نے کہا چلو اسے بھی اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ بوڑھے سکھ نے کرپال سنگھ کو گالی دے کر کہا، تو چنگا نہیں کیتا کرپال سیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا سنگھ کوٹری سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نسرین چارپائی پر خاموش بیٹھی تھی۔ کالی داس کہنے لگا، کرپال سیا، اس کا کیا کرنا ہے اب؟ کرپال سنگھ نے کمر سے پستول کی پیٹی اتارتے ہوئے کہا، یہ ہمارا بھیا ہے، ہمارا کام خراب کرے گا، ہر بار بیچ میں آ جاتا ہے۔ کالی داس نے سٹول پر چلتے ہوئے لیمپ کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ لٹکایا اور بولا، اسے میں لے جاتا ہوں۔ تم مامے لگتے ہو اس کے، کرپال سنگھ نے اسے گالی دے کر کہا۔ کالی داس نے بھی جواب میں گالی دے کر کہا، سوچ لو۔ کرپال سنگھ نے کالی داس کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، چل لو دوسری کوٹری میں۔ کالی داس ہی منہ میں بڑبڑاتا غصے کو پیتا ہوا کوٹری سے باہر نکل گیا۔ نسرین کی نظریں پستول والی پیٹی پر جمی ہوئی تھی
जो ही करपाल सिंह उसकी चारपाई की तरफ बढ़ा, नसरीन ने लपक कर पिस्तौल को पकड़ने की कोशिश की, मगर पिस्तौल पेटी के साथ लगा था। इससे पहले कि वो उसे अपने कब्जे में करती, करपाल सिंह का भैया बूढ़ा सिख अंदर आ गया। उसके साथ एक बूढ़ी सिखनी भी थी। बूढ़े सिख ने कहा, देख लो अपने पुत्र के करतूत, डाके मारता था, माल स्मगल करता था, कत्ल करता था, अब दूसरों की बेटियां भी उठाना शुरू कर दी हैं इसने। करपाल सिंह की माँ बूढ़ी सिखनी ने आगे बढ़कर करपाल सिंह के सीने पर 1-2 थप्पड़ मारे और बोली, तूने मेरा दूध नहीं पिया, जरूर किसी कुत्ती का दूध पिया है, हट जा पीछे, मैं ये पाप नहीं होने दूंगी। उसने नसरीन को बाजू से पकड़कर उठाया, चल कुड़िए मेरे साथ चल। क्या ये कोई गैबी इमदाद थी या उसने बिजली ने जो नसरीन के सीने में कड़क रही थी आसमान की बिजलियों को खबरदार कर दी थी? वो कुछ ना समझी सकी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसने अपना हाथ मौत के गिरेबान में डाल रखा था। वो किसी भी वक्त मौत का गिरेबान झटक कर उस दुनिया में पहुंच सकती थी जहां बिजलियों को चमकना, तड़पना, कड़कना सिखाया जाता है। बूढ़ी सिखनी नसरीन को अपनी कोठरी में ले आई। यहाँ एक चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था, लिहाफ भी था। बूढ़ी सिखनी ने कहा, कुड़े तू यहाँ सो जा, फजरे देखा जाएगा। नसरीन के होंठों पर अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जारी हो चुका था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो कब बिछोने पर लेटी, कब सोई और कब उठी। कोठरी के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। नसरीन को बाहर से दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। दरवाजे के खुलते ही दिन की रोशनी भी कोठरी में आ गई। बूढ़ी सिखनी उसके लिए दूध का गिलास और 2 फलकों पर मक्खन रख कर लाई थी। ले कुड़े, ऐ खा, उठते फिक्र न कर। नसरीन ने बड़ी मुश्किल से एक फुलका खाया, थोड़ा दूध पिया। बूढ़ी सिखनी उसके पास चारपाई पर बैठ गई थी। वो उससे बातें करने लगी, तो तू किसकी बेटी है, पाकिस्तान में कहाँ रहती है? नसरीन ने सारा हाल अहवाल बयान कर दिया। उस पर बूढ़ी सिखनी अफसोस का इजहार करने लगी। करपाला मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बहन का बेटा है, मगर मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसे ग्रंथी बनाना चाहती थी, ये बुरे लोगों में बैठ कर बुरा हो गया। ये तो फिक्र है, पर तू फिक्र ना कर, ये मुझसे और अपने भैया से बड़ा डरता है और किसी से नहीं डरता। दियाँ बहना सबकी सांझियाँ होती हैं, तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। अब नसरीन की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी सिखनी ने उसे अपने साथ लिगा लिया और डांट कर कहा, रोटी क्यों है? डांट कर कहा, रोती क्यों है? चल मेरे साथ, उठ, मुंह हाथ धो ले। सूरज तुलू हो चुका। बाहर छोटे से कच्चे सेहन में हैंड पंप लगा था, जिसके नीचे पानी से भरी हुई बाल्टी पड़ी थी। नसरीन एक चौकी पर बैठकर मुंह हाथ धोने लगी। दीवार के साथ गाय बंधी थी जो खुरली में मुंह डाले चारा खा रही थी। बूढ़ी सिखनी कोठरी के दरवाजे पर ही खड़ी थी कि उसका खावन बूढ़ा सिख वहां आ गया। मेरे साथ अंदर आ। दोनों कोठरी में आकर चारपाई पर बैठ गए। बूढ़ा सिख कहने लगा, इस वक्त तो करपाला और उसका हरामी कालिया दोनों चले गए हैं, पर उनकी नीयत ठीक नहीं है। मैं ये पाप अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहता। बूढ़ी सिखनी ने कहा, मैं तो कहती हूँ इस बच्ची को किसी मुसलमान के घर पहुँचा। मुसलमान? अब यहाँ बेचारे कहाँ रह गए मुसलमान? सिखनी ने कहा, मेरठ में तो मुसलमान हैं, वहाँ उसे ले जाओ, नहीं तो ये करपाल से इसे निकाल कर कहीं दूर ले जाएगा और सारा पाप हम पर डाल देगा। तुम ठीक कह रही हो, बूढ़ा कुछ सोचते हुए बोला। इस कुड़ी को हम पाकिस्तान तो पहुंचा नहीं सकते, मैं इसे मेरठ ले जाकर किसी मुसलमान घर के वालों के हवाले कर देता हूँ, वहाँ उसकी इज्जत को तो कोई खतरा नहीं होगा। तुम तैयारी पकड़ो, ये काम अभी हो जाना चाहिए, देर कर दी तो काम खराब हो जाएगा। करपाले का कुछ पता नहीं, वो कब आकर ज़बरदस्ती उठा कर ले जाए। मैं अपना अगला जन्म बर्बाद नहीं करना चाहती। तैयारी क्या पकड़नी है? सिख बोला। 8:40 पर राजधानी एक्सप्रेस वाली दिल्ली को जाती है, अभी काफ़ी वक्त है। मैं लड़की को लेकर स्टेशन पर जाकर बैठ जाता हूँ। नसरीन को मुंह हाथ धोते धोते कोठरी के अंदर से दोनों बूढ़े सिखनी की बातें करने की हल्की आवाज़ ज़रूर आ रही थी, मगर उनकी बातें उसकी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। वो भी दिल में अब यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अकेले बॉर्डर क्रॉस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अचानक उसे ख्याल आ गया कि इंडिया में उसके मुल्क का एक सफारत खाना भी तो है। सफारत खाना ज़रूर दिल्ली में होगा। अगर वो किसी तरह दिल्ली पहुंच जाए तो अपने सफारत खाने में जाकर पनाह हासिल कर सकती है, फिर उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। वहाँ वो अपने लोगों में होगी और महफूज होगी। चुनांचे बूढ़ी सिखनी ने जब उसे अंदर बुलाकर भैया जी के साथ मेरठ किसी मुसलमान के घर चले जाने की
तजवीज़ पेश की तो नसरीन फ़ौरन तैयार हो गई। उसने अपने सफारत खाने में जाकर पनाह लेने वाली बात का बिल्कुल जिक्र ना किया। इस तरह बस किसी तरह वो एक मुसलमान घराने में पहुंच जाए, वहाँ से दिल्ली जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। उसने तैयारी क्या करनी थी, 3 कपड़ों में थी, बंद गले का स्वेटर पहना हुआ था। बूढ़ी सिकनी ने उसे एक गर्म चादर ओढ़ा दी। बूढ़े सिक ने पुराना कोट भी पहनकर ऊपर से कंबल ले लिया। जाने से पहले उसने बूढ़ी सिकनी का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े जज्बाती अंदाज में शुक्र अदा किया। बूढ़ी औरत ने नसरीन के सर पर हाथ रखा और कहा, ले कुड़िए, इसमें भला शुक्रिया कुड़िए की क्या बात होगी, मैंने आगे चलकर वाहे गुरु को मुंह नहीं दिखाना। वो बूढ़े सिख के साथ साथ गांव से निकल खड़ी हुई। उसे एक ही खतरा था कि कहीं रास्ते में करपाल सिंह और कालिदास में से कोई उसे मिल ना जाए। उसने गर्म चादर में से आधा मुंह चेहरा ढांप लिया था। गांव से निकलकर वो एक बग्गी में सवार हो गई। जीटी रोड पर आकर एक बस में बैठे जिसने उसे अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। गाड़ी चलने में अभी काफ़ी वक्त था। बूढ़े सिख ने कहा कि अभी चलकर मुसाफिर खाने में बैठ जाते हैं, घंटा 1.5 घंटे बाद गाड़ी आकर लगेगी। वो उसी मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए जहाँ 1.5 घंटे पहले सुल्तान ने रात गुजारी थी। नसरीन ने सिख से पूछा, भैया जी, मेरठ शहर में किसी मुसलमान के घर जाऊंगी, क्या वहाँ आपका कोई वाकिफ़ है? उससे क्या कहेंगे कि मैं कौन हूँ? बूढ़ा सिख बोला, वहाँ मेरा एक जानने वाला है, भाई रफ़ीक नाम है उसका। स्टेशन के पीछे उसकी एक मटियारी की दुकान है। जब मैं मेरठ में रहता था तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अब वो भी मेरी तरह बूढ़ा हो गया है, बड़ा नेक बंदा है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। नसरीन ने थोड़ी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, क्या तुम उसे बता दोगे कि मैं पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाई गई थी? बूढ़े सिख का चेहरा संजीदा था, इस पर किसी किस्म का कोई तासुर बज़ाहिर नहीं था। कहने लगा, तू फिक्र न कर कुड़िए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपने पास रखेगा। इसकी कोई आल औलाद भी नहीं है, वो एक बीवी और एक आप है, छोटा सा मकान है, मगर शहर से बाहर शहर में उसका बड़ा असर व रसूख है। वो वापस तुम्हें घर पहुंचाने का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर देगा। नसरीन ने आगे से कोई सवाल ना किया। उसने सोच रखा था कि वो उस मुसलमान रफ़ीक भाई को खुद सारी बात बता देगी और उसकी मदद से दिल्ली अपने मुल्क के सफारत खाने पहुँच जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम इक़्सात आपको वक्त पर मिलती रहें। गुज़िश्ता इक़्सात हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए। अपना और अपने मुल्क अज़ीम पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।